Hello friends, welcome in HVGK Hub Biology section. Today we will discuss topic plant water relations. From this topic, top 10 questions with their clear solutions. Students, in order to succeed, we must believe that we can. So let's build up your confidence. Let's begin. First question is, the chemical potential of pure water is regarded as, प्योर वाटर का केमिकल पोटेंशियल कितना माना जाता है? 1, infinite, 0, more than 1. Students, I will give you 5 seconds. You can take your answer, and at the last of video can analyze your answer. Yes, chemical potential is a quantitative expression of the free energy of water, and it is difference between the potential of a substance in a given state and the potential of a substance in a standard state. In case of water, potential in given state as well as in standard state remains same. So ultimately, chemical potential of pure water is regarded as 0. Option number C is the correct answer. Next question is, a 10% solution of which of the following substances shall have maximum osmotic pressure? निम्नलिखित में से किस सब्सटेंस का ऑस्मोटिक प्रेशर जो वो मैक्सिमम रहता है? सोडियम क्लोराइड, सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज. Yes, students. Osmotic pressure depends upon type of solution. Solution two types के हो सकते हैं आपके electrolytic solution और non-electrolytic solutions. If there is electrolytic solution, then osmotic pressure is greater. How? In electrolytic solutions, electrolyte separate into cations and anions. Ultimately, number of solute particles increased. Increase in solute particles increase the osmotic pressure. While in non-electrolytic solutions, there is no separation of cations and anions. Ultimately, no increase in solute particles, no increase in osmotic pressure. Osmotic pressure remains down. So, in the following list here, NaCl is an electrolyte, and while all these three are non-electrolyte. So 10% solution of NaCl have maximum osmotic pressure. NaCl is the right answer. Next question is, when a fresh piece of potato is placed in a concentrated solution, its cell. जब एक fresh potato piece को concentrated solution में रखा जाता है तो उसमें क्या change आता है? It swell up, it remains as such, it shrink or it die. Very easy question. Yes, students, in concentrated solution, water is present at low concentration as compared to fresh piece of potato. This leads to loss of water from potato. Ultimately, what potato shrinks. So right answer here is option number C, shrink. Next question is, water passes into a cell due to. Most easy question and most important question. Water passes into a cell due to. वाटर एक सेल में कैसे पास करता है, किसके कारण पास करता है? ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर, ड्यू टू डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट, ड्यू टू वॉल प्रेशर, ड्यू टू डिफ्यूजन. यस, सेल गेन और लूज वाटर ऑन द बेसिस ऑफ वाटर पोटेंशियल और डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट. movement of water takes place from lower dpd to higher dpd and from higher water potential to lower water potential. So here water passes into a cell due to diffusion pressure deficient. Next question is, osmotic pressure in a vacuolated plant cell is. एक वैक्यूलेटेड प्लांट सेल में ऑस्मोटिक प्रेशर कितना रहता है? इक्वल टू वॉल प्रेशर, इक्वल टू टर्गर प्रेशर, मोर देन डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट, लेस देन डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट. अ वैक्यूलेटेड सेल बिहेव एज osmometer. In vacuolated cell, value of osmotic pressure begins to fall and dpd becomes more than OP, osmotic pressure. So, अगर हम जनरल समझें ऑस्मोटिक प्रेशर क्या रहता है? ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर exerted on a substance to stop osmosis. And what is osmosis? Osmosis is the diffusion of water molecules through a semi-permeable membrane.
तो बैक्यूलेटेड सेल में क्या रहता है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो ऑस्मोसिस को स्टॉप कर देता है। तो इसके लिए जो डीपीडी रहता है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट है, वो काउज करता है ऑस्मोसिस। डीपीडी काउज osmosis, and osmotic pressure stop osmosis. So in case of bacculated cells, there is no osmosis. Why? Because osmotic pressure in a bacculated cell is greater than diffusion pressure deficient. Clear? Next question is, water potential found in root hair cells is generally, रूट हेयर सेल्स में सामान्यतः कितना वाटर पोटेंशियल देखा जाता है, 1 to 2 एटमॉस्फेयर, -1 to 2 एटमॉस्फेयर, -1 to 4 एटमॉस्फेयर, -1 to -4 एटमॉस्फेयर. Yes, water potential as we know depends upon number of water molecules. जितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ही वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा. और मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल की वैल्यू जो रहती है दैट इज 0 एंड इट इज़ फॉर प्योर वाटर. और सोल्यूशन के लिए जो वाटर पोटेंशियल की वैल्यू रहती है इट्स ऑलवेज नेगेटिव, लेस देन 0. प्योर वाटर के लिए मैक्सिमम रहती है 0. तो इन केस ऑफ वाटर जो वो हमेशा मूव करता है हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल. सो वाटर इन रूट हेयर सेल्स, इन केस ऑफ रूट हेयर सेल्स वाटर कांट बी मोर देन 0. वाटर जो वो 0 से बड़ा नहीं हो सकता, वाटर पोटेंशियल जो है वो 0 से बड़ा नहीं हो सकता है, ना ही वाटर पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव हो सकता है. सो इट शुड बी लेस देन 0 और नेगेटिव वैल्यू. सो हियर वाटर पोटेंशियल फाउंड इन रूट हेयर सेल इज जनरली, तो पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकता, 1 and 2 एटमॉस्फेयर नॉट पॉसिबल, -1 to 2 atmosphere again positive not possible, -1 to 4 not possible. Here the right answer is option number D, -1 to -4 atmosphere. Next question is, starch sugar interconversion hypothesis was proposed by, who proposed starch sugar interconversion hypothesis? Leavitt, V. Sayre and Stewart, C. Sachs, D. Emerson. So what is starch sugar interconversion hypothesis? Starch sugar interconversion hypothesis is related to stomatal opening and closing, and it was given by Sayre in 1923 and modified by Stewart in 1964. So let's see what is starch sugar interconversion. This interconversion is based on enzyme phosphorylase, and this enzyme phosphorylase becomes activated at neutral pH और alkaline pH. जैसे ही pH जो वो 7 हो जाती है तो उस टाइम ये फॉस्फोराइलेज एंजाइम जो वो एक्टिवेटेड हो जाता है और ये स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में. स्टार्च इज द इनसॉल्युबल फॉर्म एंड ग्लूकोज 1 फॉस्फेट इज द सॉल्युबल फॉर्म. अल्टीमेटली क्या रहता है आपका, जैसे ही सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है. ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज़ करने से वाटर जो है वो सेल में रश करना स्टार्ट कर जाता है. एज अ रिजल्ट वो सेल बिकम टर्जिट. जैसे ही सेल टर्जिट हो जाता है तो जो सेल के बीच में पोर रहता है वो ओपन हो जाता है और स्टोमेटा जो है वो अल्टीमेटली ओपन हो जाते हैं. ये प्रोसेस आपकी रहती है ड्यूरिंग डे टाइम. नाइट में इसका अपोजिट प्रोसेस रहता है, रिवर्स प्रोसेस रहता है. नाइट में अब ये सब होता क्यों है, pH 7 कैसे जाती है? लेट्स सी. ड्यूरिंग डे टाइम देर इज फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होती है. फोटोसिंथेसिस के कारण कार्बन डाइऑक्साइड जो वो कंज्यूम हो जाती है, उसका अमाउंट कम चला जाता है. कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कम जाता है, अल्टीमेटली जो pH है वो इंक्रीज़ कर जाती है. pH इंक्रीज़ करने से फॉस्फोराइलेज एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है और ये स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में. दिस ग्लूकोज 1 फॉस्फेट शारे ने यहीं तक बताया था कि स्टार्च को कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में विच इज अ सॉल्युबल फॉर्म एंड इट इंक्रीज द ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ द सेल. अल्टीमेटली वाटर रश इनसाइड द सेल एंड cell become turgid, stomata gets open.
बट लेटर ऑन दिस थियरी वाज हाइपोथेसिस वाज मॉडिफाइड बाय स्टीवार्ट. इन्होंने बताया था कि ग्लूकोज 1-फॉस्फेट जो है इसका पोटेंशियल और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का पोटेंशियल इक्वल रहता है. सो इसको किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है ताकि ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाए. तो ग्लूकोज 1-फॉस्फेट को कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज फॉस्फेट में, 6-फॉस्फेट में, देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. This is a final product in this process according to Stewart. And this increase osmotic potential ultimately turgidity of the cell, and due to turgidity of the cell these guard cells stomata get opens. और इसका अपोजिट रहता है नाइट टाइम में. नाइट टाइम में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा रहता है. कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा है, पीएच जो है वो डाउन चली जाती है. पीएच डाउन रहेगी, फॉस्फोराइलेज एंजाइम जो है वो हाइड्रोलिसिस नहीं कर पाएगा. अल्टीमेटली ये क्या करेगा, हेक्सोकाइनेज एंजाइम जो है वो एक्ट करेगा एटीपी के ऊपर और एडीपी फॉर्म करेगा और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज करेगा और ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया जाएगा ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में. एंड दिस ग्लूकोज 1-फॉस्फेट इज रिकन्वर्टेड इनटू स्टार्च. इट्स अ रिवर्स प्रोसेस. एंड जैसे ही स्टार्च की फॉर्मेशन हो जाती है, इनसॉल्युबल फॉर्म हो गई, अल्टीमेटली ऑस्मोटिक प्रेशर जो है सेल का वो कम हो जाता है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, और सेल जो वो वाटर लॉस कर देता है, सेल जो वो फ्लैसिड बन जाता है. अल्टीमेटली इनके बीच में जो पोर होता है वो क्लोज हो जाता है और स्टोमेटा आपके क्लोज हो जाता है. दिस इज अ स्टार्च sugar interconversion hypothesis given by Sciarra and Stewart, given by Sciarra in 1928 and modified by Stewart in 1964. Later on this theory was discarded due to many limitations. Next question is, which of the following is produced during water stress and causes closure of stomata? इनमें से कौन सा हार्मोन जो वो रिलीज होता है ड्यूरिंग water stress and cause closure of stomata? Cytokinin, abscisic acid, gibberellic acid or auxin? Yes students, here the right answer is option number B. Abscisic acid is produced during water stress and causes closure of stomata. Let's see. During opening of stomata there is present a pump, hydrogen ATPase pump on the membrane of guard cells. This pump releases hydrogen ions in the apoplast region and increase the acidity of the apoplast region, and also hyperpolarize the membrane. Due to hyperpolarization of membrane and apoplast acidification, all the influx channels on the membrane get open. जैसे ये चैनल ओपन हो जाते हैं, फर्स्ट सबसे पहले जो पोटाशियम इनफ्लक्स रेक्टिफाइंग चैनल रहता है वो ओपन हो जाता है और पोटाशियम का इनफ्लक्स होना स्टार्ट हो जाता है इनसाइड दी गार्ड सेल्स. सेकंड, स्टार्च का ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाता है. स्टार्च जो वो मेलेटाइन में ब्रेकडाउन हो जाता है, एक्वापोरिन चैनल ओपन हो जाते हैं, वाटर का इन्फ्लक्स होना स्टार्ट हो जाता है, अदर्स एनाइन और केटाइन चैनल्स जो वो भी ओपन हो जाते हैं और इन सब का इन्फ्लक्स होना स्टार्ट हो जाता है गार्ड सेल्स में. ड्यू टू दिस इन्फ्लक्स ऑफ दिस आयंस, गार्ड सेल्स की टर्जिडिटी जो वो इंक्रीज हो जाती है और अल्टीमेटली गार्ड सेल्स जो है वो, जो गार्ड सेल के बीच में पोर रहता है वो बाइड हो जाता है और स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाते हैं. रिवर्स केस में क्या रहता है, स्टोमेटा क्लोजर कैसा होता है, इसमें माना जाता है कि एब्सिसिक एसिड क्या करता है, जो हाइड्रोजन एटीपीएस पंप है इसको स्टॉप कर देता है. अल्टीमेटली नो पोलराइजेशन ऑफ membrane गेट डिपोलराइज्ड, जितने भी इनफ्लक्स चैनल्स थे वो क्लोज हो जाते हैं और सबका इफ्लक्स होना स्टार्ट हो जाता है. कैल्शियम आयन, क्लोराइड आयन, नाइट्रेट आयन, मैलेट आयन सब सेल गार्ड सेल से बाहर की ओर मूव करना स्टार्ट कर जाते हैं. और जो मेलेटाइन फॉर्म हुआ था उसकी भी ग्लूकोनियोजेनेसिस होना स्टार्ट हो जाती है. मेलेटाइन रिकन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में. वाटर आल्सो रिलीजेस, अल्टीमेटली सेल बिकम फ्लैसिड and the pore between these cell become narrow and stomata become closer. So this is a funda of abscisic acid, how during water stress it causes closure of stomata. अभी भी इसके ऊपर रिसर्च चली हुई, इतना क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट, बट ये माना जाता है कि एवी ही स्टोमेटा का क्लोजर काउज करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोहेजन ट्रांसमिशन पुल थियरी ऑपरेट्स ओनली इन, कोहेजन ट्रांसमिशन पुल थियरी कैसे ऑपरेट करती है, इन पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन, एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन,
conditions favoring transpiration, condition restricting transpiration. So what is cohesion transpiration theory, transpiration pull theory? It's also is the most accepted theory of ascent of sap, and it was given by Dixon and Joly in 1894. By Dixon and Joly in 1894. Ascent of sap, that is movement of water from roots to leaves against force of gravity. तो ये कैसी रहती है? Cohesion of transpiration pull theory operates in passive water absorption, active water absorption, condition favoring transpiration, condition restricting transpiration. तो कोहेजन ट्रांसपिरेशन थ्योरी में ये एक्सप्लेन करती है कि वाटर फॉर्म करता है एक कॉन्टिन्यूस कॉलम फ्रॉम रूट टू लीफ. रूट टू लीफ एक कॉन्टिन्यूस वाटर का कॉलम जो है वो फॉर्म किया जाता है थ्रू जाइलम डक्ट्स, so roots and leaves. This continuous column is maintained by two phenomenon, cohesion and adhesion. Cohesion between water molecules and adhesion between water molecules and wall of the xylem ducts. So इसमें क्या रहता है, जैसे ही वाटर जो है वो मेसोफिल सेल से वाटर लॉस होता है तो अल्टीमेटली इट क्रिएट्स अ टेंशन, ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट कर देता है. और जो ट्रांसपिरेशन पुल है ये डाउनवर्ड मूव कर किया जाता है. जैसे ये रूट्स तक पहुंचता है, रूट्स इस टेंशन को रिलीव करती है बाय एब्जॉर्बिंग वाटर. और ये वाटर जो वो कॉन्टिन्यूसली मूव करवाया जाता है फ्रॉम रूट्स टू लीव with the help of a continuous column by phenomenon cohesion and adhesion. So here no energy is required. Ultimately cohesion transpiration pull theory operates only in passive water absorption. Clear? Next question is, in a full turgid cell which is equal to 0. एक फुल टर्जिड सेल में किसकी वैल्यू 0 हो जाती है? टर्गर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट, wall pressure. Most important question and maximum time repeated question. Full turgid cell is which is equal to 0. Turgor pressure, osmotic pressure, diffusion pressure deficient और wall pressure. Student, तो अगर एक फुल टर्जिड सेल की बात करें तो फुल टर्जिड सेल में क्या रहता है? जो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट की बात करें, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर. टर्गर प्रेशर इज इक्वल टू वॉल प्रेशर. क्लियर? सो अगर एक नॉर्मली डीपीडी इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर एंड टर्गर प्रेशर इज इक्वल टू वॉल प्रेशर, तो हम ये भी बोल सकते हैं डीपीडी इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस वॉल प्रेशर. टर्जिड सेल में क्या रहता है? टर्जिड सेल में ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू जो है वो इक्वलेंट हो जाती है टर्गर प्रेशर के. व्हेन ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू टर्गर प्रेशर then dpd become equal to 0. So your right answer is option number C. In a full turgid cell dpd is equal to 0. This is equal to 0. Clear? Thank you students. If you like the video then like, share and subscribe, and for any query WhatsApp on our number. Thank you.